Hello everyone, students, mentors and everyone listening. I'm Sujata and I'm here today not just as someone who leads this organization, but as a person who believes there's something profound in the stories we don't always tell. Welcome to Meet the Mentor, a series that's been on my mind for a while now. A chance to sit down with the people who guide you, our students, and explore who they really are. This isn't about resumes or titles. It's about the human behind the mentor, their struggles, their dreams, the quiet moments that shape them into the people they are today. We're going to talk to them one by one and peel back the layers. What drove them to this point? What keeps them up at night? What's the story they have never shared? The one that might just change how you see them or even how you see yourself. I've always thought there's something powerful in getting to know someone beyond the surface. And our mentors aren't just here to teach. They are here to inspire, to show you what's possible. And they've got lives full of texture. The time they failed and got back. The odd passion they chase when no one's watching. The unspoken tale of why they care so much about what they do, about you. Maybe the mentor who once doubted they'd even make it, or the one who found strength in something you'd never guess. These conversations are about bringing that out, raw, real, unfiltered. For you, our students, this is a window into their world. You will hear them think aloud, laugh, maybe pause as they dig into something personal. And my hope is that you will find something in their journeys, a spark, a lesson, a connection that sticks with you. Because education isn't about facts, it's about people, about understanding what it means to wrestle with life and still show up for others. To our mentors, thank you for letting us in. To our students and all those who are watching, get ready to listen, to feel, to discover. This Meet the Mentor is a space for stories that don't usually get told. And right now, we are diving in because real magic starts when you hit play. Watch us. So welcome to another episode of Meet the Mentor podcast series. And today we have another very inspiring mentor guest with us, Ramanuj Mishra. A man who has turned his bold vision into this very remarkable reality. MTech from IIT Kharagpur in cryogenic engineering, and he's made a very thrilling shift, I would say, from the tech world to education way back in 2010. So what makes Ramanuj unique? How does one person with such a clear vision and unwavering dedication transform a city's education landscape, yes, Noida's education landscape, from a single center in Noida to a flourishing network of 4 centers? This is about his journey, and it is nothing short of revolutionary. So 15 years of Ramanuj's passion we're going to cover in this podcast, and it's not just about numbers, but they are important. He's touched about 50,000 students in his journey of 15 years. But more than creating this journey is not about creating or touching just those 50,000 students. It's about creating this environment where every student of his feels valued and empowered to reach her or his full potential. So what can one person do, and how can one person truly achieve his dream with his relentless passion? Well, you're about to find out all this and more from the man himself today. Welcome, Ramanuj, to this show today, and a very warm welcome. Thank you, ma'am. And when it was asked for me
to just do this recording with you. I think it's honor to be here and recording this entire series with you. एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच. तो अभी मैं थोड़ा हिंदी में बात करूंगी. रामानुज की हिंदी बहुत ही अच्छी है, सो पार्डन माय लिटिल, आई थिंक आई विल डू मोर ऑफ इंग्लिश. आई डोंट वांट टू मिस रामानुज हिंदी एक्सप्रेशंस एंड अ लॉट ऑफ लवली phrases and anecdotes which I've heard him quote really well in Hindi. So Ramanuj, feel free, whatever is your choice. हमारी ऑडियंस हिंदी समझ लेती है एंड पूरा भारत ही हिंदी समझ लेता है. तो एंड जब हम अपने क्लास में भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उनके कंफर्ट के लैंग्वेज में आप बात करें. तो बहुत बार मैंने इंग्लिश फैकल्टी को भी सजेस्ट किया है कि इट इज़ अबाउट कनेक्शन इनसाइड द क्लासेस. तो हिंदी की स्टोरीज भी हम लोग सुनाते रहते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, तो भी उसमें हिंदी के बहुत सारे स्टोरीज हम कनेक्ट करते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो हम चलो वहीं से शुरू करते हैं. द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी. जी मैम. एंड बचपन तक हम थोड़ा बाद में जाएंगे, बट हाउ योर जर्नी इन दिस एजुकेशन स्पेस बिगैन. 2010 में है, पता है जी. आप एकदम टेक स्पेस में थे, वहाँ से इसमें कैसे आ गए, क्या इंस्पिरेशन थी? जी. सो ये जिस मोमेंट में मैं अभी बैठा हूँ, मैं इसके 15 साल पहले जा सकता हूँ एग्जैक्टली. आई थिंक दीज आर द टाइम व्हेन दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ CL अराइव टू मी. एंड इसके पीछे एक ही बात है कि जो कॉलेज में हम लोग बात करते रहते हैं कि कुछ तो अपना करना है. ज़रूर. आई थिंक वो जो फ्रेंड के साथ जो छोटे छोटे वादे किए जाते हैं. So in 2010, 4 of my friends, so including me, we were 5, and I got a call from 2-3 of them saying, this is an opportunity we are seeing, and it is about education. Would you like to come? Wow. And at that time, I was at Shanghai working at Asia office of Praxair, and then I need to take call because Praxair also wanted me to take some long-term role, and they awarded me role model of employee at that year. तभी से. And that's a 3 years of transition. They also wanted me to be at their Asia office and do things. But at the crossroad, idea was how I can be more effective to the world. Sure. And I've been always working either in the corporate or at college or at my family circle. I always try to see what contribution I can make to somebody's life. And when education was asked for me, I think मुझे लगा कि शायद ये मौका मुझे लेना चाहिए. और मैंने दोस्तों को हाँ कही. और उसमें बहुत सारे ना थे, फैमिली फ्रेंड्स में भी, मेरे प्रोफेसर्स के साइड में भी उनका ये कहना था कि बिकॉज यू आर इन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड एंड यू आर अ प्रोसेस डिज़ाइन इंजीनियर, यू हैव डन M.Tech, how you see yourself coming in area of education. But I had couple of experience during my college days. So in sum up, I thought it is a time for me to first come back to India, and that was also one call. And the long-term vision to be in this space of education. It was there since the beginning. In the colleges also I have pursued the same. बहुत बढ़िया. तो एजुकेशन करना चाहते थे, हेल्प करना चाहते थे, बट डोंट वरी, आपने टेक नहीं छोड़ा, क्योंकि टेक तो इसमें अभी कूट के भरा है. तो एक टेक है, कूट के भरा है. सो वील कम टू दैट. रामानुज, आई नो कि आप बहुतों के इंस्पिरेशन हैं, स्टूडेंट के भी, पेरेंट्स के भी, बहुत से बाकी मेंटर्स के भी आप बड़े इंस्पिरेशन हैं, इतना तो मैं जानती हूँ, एंड बहुत से लोग जानते होंगे. आपके रोल मॉडल्स एंड इंस्पिरेशंस कौन हैं, कौन रहे हैं जिन्होंने आपके इस अप्रोच को शेप किया है? मैम, लाइफ में अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत सारे लोग मिले और उन्होंने मुझे हेल्प किया, और इट मे बी अ प्लान मेड बाय द गॉड. मतलब जब मैं अपने को स्कूल डेज से देखता हूँ,
हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई करी, और हम कितना दूर तक सोचते थे। अब अगर मैं आज देखता हूँ तो शायद मैं जो मैं आज कर रहा हूँ उतने दूर तक भी नहीं सोचते थे हम। इट्स ऑल अबाउट द सिनेरियो एट दैट टाइम फॉर अस इज लाइक, ठीक है, मतलब बेस्ट करेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे। आई थिंक देयर वाज नो बिग ड्रीम देन दैट, बट व्हेन आई एंटर टू माय कॉलेज and I did my engineering from Pantnagar University, it's the Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, very old renowned college in right now it is in Uttaranchal. Earlier it was in UP. When I joined that college. I met a professor, Dr. Shivendra Kashyap. I'm taking his name because without him I think I can't think about my life. Sure. The way he look at me at that time, he understood what I can do, and it to do with the communication, language, even a self respect. If it is like a self confidence, he was the one, he understood it at a very early stage of my first year, and then he advised me to do couple of things. Right. And still he's my mentor. Each and like I don't think so in 10 days we don't speak, we speak, and right now he has done a lot of, like, I'm the one of them. He has touched more than thousands of person like me during the college, so he is an inspiration for me, and I think for many. I'll see his way of mentoring. I think that has shaped up me to work like this. Lovely. So I have seen him very closely, the way he worked with the people, with the students. वो चीज़ है, शायद हम कुछ कॉपी कर गए उनके साथ रहते रहते। तो शायद मैं तो उनको ही ये बात दे सकता हूँ कि अगर कोई मेरे वर्क से इंस्पिरेशन लेता है तो a lot of to do with डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप। तो उन्हें अगर कोई जानता हो तो उनकी सारी बहुत सी झलक आप में है। यहाँ तक कि मेरे जूनियर्स कहते हैं कि सर आप जब चलते भी हैं तो भी आप कश्यप सर की तरह वॉक करते हैं। So I have to now meet Mr. शिवेंद्र कश्यप जी, है ना? अभी भी प्रोफेसर हैं? Yes, he was the dean of College of Agriculture. हाँ. So he's still there at the college. कभी उनसे भी बात करते हैं? Sure, ma'am. So ये बहुत बड़ी बात कही आपने रामानुज. You spoke about mentorship and how that has that it seems a very short small word, but that has a lot of impact which stays with you all your life, and I'm glad you met him, so we got you the way you are. What does mentorship mean to you, and उसके around जो भी memorable experiences हैं students के, जो भी आपको share करना चाहें आप? So for me, when we say mentorship, I think it's the most important aspect of the today's society. हम घर में हैं या जब हम स्कूल में बच्चों के साथ बात कर रहे हैं या हम कॉलेज के बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, they have a lot of information with them due to technology and all. Sure. They know how many things they can do. Right. But the biggest problem they will face, what is best for them. Right. So it is the same way when we are kid, our mothers knows better which food to eat. What we like, it is not important. It is important what is best for me. Sure. That's where I see the mentor's role is to guide the kids what is best for them. Sure. And obviously for them, we have to be updated. Right. We have to be even better than them. So that's a learning. That's what the race going on. The Right. kids are learning faster. Are we learning faster? So I always say mentorship is to tell them what is right for them. Right. And do it for relentless time. Right. वो एक बार में नहीं समझते. Right. वो time लगता है. I think that patience the mentor has to keep with them. Excellent, excellent. अभी 15 साल से तो आप बहुत सारी मेंटरिंग, टीचिंग कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं. उसके पहले भी जैसे आपने कहा इस चीज़ से आपको लगाव है. हाउ कैन यू इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ.
अगर आप अपने को देखें over the last 15-20 years, how have you evolved as a person, as a mentor, या आपकी टीचिंग फिलॉसफी कैसे इवॉल्व हुई है? जब मैं टीचिंग एज अ करियर देखता हूँ तो मैं बोलता भी रहता हूँ कि जितने ज्ञान मैंने सुने हैं उतने किसी ने नहीं सुने होंगे और वो किसी ने दिए नहीं, वो मैंने ही दिए। हाँ। क्योंकि जब भी मैं क्लासेस में अगर कोई भी लाइफ स्किल्स भी दे रहा हूँ बच्चों को, तो शायद मैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बच्चों को दे रहा होता हूँ, बट उसमें एक ही व्यक्ति कॉमन होता है जो हर बार वो सुनता है वो लाइफ स्किल्स, वो मैं होता हूँ। तो मुझे ये लगा कि शायद ये क्योंकि मैंने ज़्यादा बार सुना तो मुझे उसको वो करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ज़्यादा है। आई थिंक दैट थॉट हैज़ गिवन मी द मेन पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीचिंग एज अ करियर। मुझे लगा जो मैं बात करता हूँ पहले मैं उस पर मैं स्टैंड करता हूँ कि नहीं, और बच्चों के सामने आपको एज अ रोल मॉडल जाना ही पड़ेगा। तो जितनी बातें होती हैं उसको मुझे ओबे करना पड़ता है सबसे पहले। एंड आई थिंक दैट लेड एंड दैट गेव मी लाइक इट इज नॉट बिकमिंग हार्ड फॉर मी, इट बिकेम ईजी फॉर मी, क्योंकि मैं वैसा ही हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा अलग कुछ नहीं करना होता। तो शायद वो मैसेज बच्चों के पास भी जाता रहता है। तो लिसनिंग योर ज्ञान फर्स्ट, आई थिंक द फर्स्ट थिंग एनीबडी कैन डू। एक्सीलेंट। जो हम किसी को ज्ञान दे रहे होते हैं शायद हम खुद सुन लो भाई, और खुद उस पर जी लो, तब जाके आई थिंक दैट मैसेज विल गो टू देम। एक्सीलेंट। तो आप पहले से अच्छे थे ही रामानुज, तो आप बेहतर से अभी बेहतरीन बनते जा रहे हैं इन मेनी वेज इतने सालों से। लाइफ की लर्निंग को थोड़ा सा हमने बहुत बेसिक से देखा है, बिकॉज जो अपना पर्सपेक्टिव रहा है, एक बहुत ट्रेडिशनल फैमिली में पले बड़े, और जब गवर्नमेंट स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, और उस समय गवर्नमेंट स्कूल का मतलब ये था कि इवन इट इज़ मोर कॉम्पिटिटिव देन टुडेज प्राइवेट स्कूल्स। मेरी जो क्लास थी उसमें 5 सेक्शन थे और उसमें 600 बच्चे होंगे। यानी मतलब कभी कभी ऐसा बैठने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि वो क्लास डिज़ाइन नहीं है 100 लोगों को बैठने के लिए, लेकिन 100 एडमिशन हो गए गवर्नमेंट स्कूल में। इट वॉज वेरी कॉम्पिटिटिव। तो एक तो वो ट्रेडिशनल टीचर्स के साथ जो हम लोगों ने पढ़ाई करी, उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, जिसमें हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें उन टीचर से किस लिए जाना है। हम उनके पास जाते थे, कभी कभी 6 घंटे भी हम उनके साथ हैं, उनके घर में हैं, और हम उनके साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होते। तो इट इज़ नॉट लाइक वेरी टाइम बाउंड पढ़ाई हमने नहीं करी। तो वो एक सीख रही। बट कहीं ना कहीं जब हम पंतनगर गए और उसके बाद जब मैं IIT गया, उसमें जो लर्निंग मैंने नहीं सीखी थी, आई थिंक वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट थी, और हमने उसको कोशिश की कि मैं उसको जितना मैक्सिमाइज कर सकूं। मैंने पंतनगर को 4 साल को मैं बोलता हूं कि मैंने 40 साल जिया है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे काम किए हमने, वो इतने कम टाइम में नहीं हो सकते थे। बहुत बढ़िया। तो रामानुज, जितना मैं आपको जानती हूँ, यू आर वेरी रूटेड टू योर रूट्स, एंड अभी भी आप हर साल उतना टाइम निकाल के आपके होम टाउन जाते हैं, एंड यू गो बैक टू योर बेसिक्स ऑफ योर चाइल्डहुड। ये कहानियाँ तो मैंने सुनी है, आई एम श्योर पीपल विल बेनिफिट। तो वो एक है उसके बारे में जो बताना चाहते हैं कि वाई यू डू इट, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग दैट यू डू, यू आर कनेक्टेड सो डीपली। एंड आप स्टूडेंट्स को क्या की वैल्यूज़ आपको लगता है देते हैं जाने अनजाने में, विच विल टेक देम बियॉन्ड एकेडमिक्स? बीइंग कनेक्टेड टू द रूट्स का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, और बिना रूट्स के सर्वाइवल नहीं। करेक्ट। मतलब पूरी प्रकृति जितना नेचर है उसके सबके रूट्स हैं। मतलब ये ट्रीज देखते हैं या जो भी आप देखें, ओरिजिन्स आर इम्पॉर्टेंट, रिवर्स हैं। तो एक बात जो मैं उसको बहुत वैल्यू करता हूँ कि व्हाट यू हैव रिसीव यू नीड टू गिव बैक। मैं कहता हूँ बहुत सिंपल सा बिजनेस है। जब हम SICI पढ़ाते हैं तो उसमें एक बात आती है कि when transactions happen, तो A gave some money to B, what is in principle B should do? In principle, he should return 100 rupees.
करेक्ट। कहते हैं ना, तो मैं यही बात बोलता हूँ कि एवरीबडी ऑफ अस, वॉट एवर वी रिसीव फ्रॉम एनी वन, फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द प्लेसेस, आई थिंक इन प्रिंसिपल आई शुड रिटर्न। मैं बोलूँगी वो थोड़ा इंटरेस्ट के साथ दे दो। एंड दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, ये मिनिमम है। आई थिंक यू शुड गिव बैक विद द इंटरेस्ट। आई थिंक दैट मेक्स दैट पर्सन हैप्पियर, Right. क्योंकि उसने वो इन्वेस्ट किया है। सो बीइंग born and brought up and studied till 12th, आज भी वो सारे लाइफस्टाइल हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे जीवन का पार्ट है। एंड द पेरेंट्स आर देयर एंड पेरेंट्स आर वेरी मच फर्म, दैट इज द रूट्स। तो मुझे लगता है कि आई थिंक जो मेरा सक्सेस है या जो मैं लाइफस्टाइल जीता हूँ, दे डिजर्व इवन बेटर देन मी। Sure. और उनके बेटर का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इफ यू आर रियली कनेक्टेड टू द रूट्स, they don't want anything, they don't want money, they want Just that you should touch. you should tell them, you should make them to make to believe कि यार मैं गांव से जुड़ा हूँ। सो एक छोटी सी बात है, we stay in closer to our village, city Buxar, and father grandfathers came I think quite long back, वो 50s की बात है, 1950 में शिफ्ट हो गए थे बक्सर। सो वी हैड अ ओल्ड हाउस इन विलेज, एंड वो धीरे 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 करके गिर गया, एंड बिकॉज नोबडी वाज देयर टू स्टे, तो हम लोगों ने फिर से रीबिल्ड किया। नोबडी इज स्टेइंग, बट ईच एंड एवरी ईयर व्हेन वी गो एंड होली एंड अदर, वी डू समथिंग ओवर देयर। तो वो एक जो बात आती है कि नाउ that small house is helping me to connect with my all the old origins. Wow. नहीं तो शायद वो लोग मुझे बस ये जानते थे, उनको वो देखे होंगे मुझे, लेकिन मुझसे कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन अब हम जब जाते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों से कनेक्ट होता है। आई थिंक वी हैव टू पुट एफर्ट फॉर गेट इट कनेक्टेड ओवर देयर। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। Nice. और उसके इन लाइन में है। और सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स शुड बी वेरी हैप्पी। Right. मेरे प्रोफेसर का एक बहुत सिंपल सा लाइन है, इफ योर पेरेंट्स आर हैप्पी यू विल बी हैप्पी। इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। Sure. ये ध्यान रखना है। श्योर। तो आप बच्चों को अभी जब बात करते हैं, व्हाट आर द वैल्यूज यू ट्राई टू इंस्टिल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? हाँ, इट बिकम वेरी हैवी फॉर देम, बिकॉज थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही वैल्यू सिस्टम्स को कैरी करता हूँ। बट आई टेल देम वेरी क्लियरली, बहुत दोस्त मित्र है तुम्हारे, बहुत सारे लोग हैं, टेक इट मी एज इट इज। ओके। मैं ऐसा ही हूँ तुम्हारी लाइफ में। Okay. तो ये मैं उनको हमेशा रखता हूँ। तो एक तो मैं बोलता हूँ, इफ यू रियली वांट टू बी अ मैनेजर, आर यू अ मैनेजर एट होम? कैन योर पेरेंट टेल यू आर अ गुड मैनेजर? इफ यू आर नॉट गेटिंग such kind of words from your parents, how can you think a corporate guy will tell you you are a great manager? Wow. So now don't ask water from your mother. Go and bring Water. one glass for her and take one glass for you. Wow. क्यों ऐसा करना? You are the most efficient, young. तो थोड़ा ज़्यादा कूदो, ज़्यादा घर में काम करो। You should be one जब तुम घर से निकलो लोग मिस करें कि शायद वो रहता तो मेरा काम आसान होता। Wow. So I tell, be a manager at home. So I especially tell 11th-12th kids कि थोड़ा धीरे धीरे बदलो। Now you will be expected to add a lot of help to your colleague, to the situation. क्या तुम वो घर में भी कर रहे हो? Sure. वो छोटी बात है, बट उसके हैबिचुअल हो जाओगे तो जब कॉर्पोरेट जाओगे तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग आई ऑलवेज ट्राई टू टेल देम। तो पेरेंट्स भी आपके साथ जाहिर है बहुत खुश होंगे, एंड आई एम श्योर दे कम बैक एंड टेल यू कि आपकी वजह से बच्चे सुधर गए हैं। अब कौन कितना सुधरता है मैम, ये तो बहुत वैसी बात है। बट मैंने एक बात कही कि हमें कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा इस बात पे। जैसे वो अगर नहीं बदलना, अगर बदलने में उनको ज़्यादा देरी होगी तो हमें भी उतने देर तक लगे रहना पड़ता है। तो पेरेंट्स के साथ भी जब भी इंगेजमेंट होता है, वी ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट लाइक दिस कि व्हाट चेंज वी वांट। श्योर। एंड और पेरेंट्स को भी थोड़ा गाइड करने का मुझे लगता है कि एज अ मेंटर हम लोग का काम रहता है, बिकॉज पेरेंट्स समटाइम्स हैव अ डिफरेंट वे टू रिव्यू देयर ओन किड्स। सो वी टेल देम व्हाट इज द राइट वे। तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक काम चल रहा होता है उनके साथ।
तो रामानुज, आपने इस क्षेत्र में बहुत डीपली काम किया है। व्हेन आई से इस क्षेत्र में, लॉट ऑफ टाइम्स हम एडजॉइनिंग या अगल बगल की चीज़ें भूल जाते हैं। हमारा थिंग है मेंटरिंग द स्टूडेंट, हम भूल जाते हैं एनवायरनमेंट कैसे है, पेरेंट्स कैसे हैं। बट आपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत काम किया है। सो वुड यू लाइक टू शेयर वो पेरेंट गाइडेंस वर्कशॉप क्यों किया, उससे आपको क्या दिखा, फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड टू नाउ वो कैसे प्रोग्रेस हुआ है? इट वुड बी नाइस फॉर पीपल टू नो। राइट मैम। सो अगर आप पेरेंट्स का भी अपना जर्नी देखें तो ये जो जनरेशन, अगर मैं अपने को देखता हूँ, सो वी हैव ग्रोन फॉर चेजिंग अ ग्रोथ। क्योंकि आप बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और आपके सामने बस एक ही एजेंडा होता है, डू वेल। तो ये पेरेंट्स कहीं ना कहीं जो हम मेरे एज ग्रुप में या मेरे से 5 साल 10 साल बड़े जो लोग हैं, आई थिंक इन्होंने पेरेंटिंग को लेके बहुत ज़्यादा समय इन्वेस्ट किया नहीं है। Right. मतलब मैं अपने को भी उसमें काउंट करता हूँ। तो समवेयर व्हेन वी वर्क इन आवर डोमेन, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सक्सेस ऑफ किड में पेरेंट का भी अपना एक रोल है। एब्सोल्युटली। तो जो पेरेंट्स कोई डिसीजन ले रहा होता है, तो डिसीजन लेने के पीछे जो उसका नॉलेज बेस है, उसको सही करना हमारा काम है। बहुत बढ़िया। सो व्हेन वी स्टार्टेड पेरेंट गाइडेंस सेशंस फॉर आईपीएम, राइट, फॉर लॉ, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सारे बच्चे अगर एनएलयू पहुंच जाएं, ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती। राइट। लेकिन सारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत बड़ी बात कही आपने। तो कहीं ना कहीं उन पेरेंट्स को ये बात को बताना कि हम इस पूरे तैयारी के दौरान, हमारे लिए केवल एक ही थंब रूल है, आई ऑलवेज लुक एट द एफर्ट। इंटेलेक्ट तो मैंने देखा ही नहीं कभी। मैंने देखा बच्चे का एफर्ट का डायरेक्शन अगर सही है तो शायद वो सही जा रहा है। श्योर। एंड देन वी स्टैंड बाय दैट किड, और मुझे लगता है वो बच्चे अच्छे कर जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो वो पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा हमें लगता है कि हमें एंगेज करना चाहिए। ये जो एफर्ट की बात कही, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेक अ मेंशन कि स्कूल सिस्टम्स में अभी आउटकम मेजर तो करते ही हैं, बट एफर्ट मेजरमेंट भी मीन्स उसकी भी शुरुआत की है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अगर कैपेबिलिटी है, इंटेंट नहीं है, एफर्ट नहीं है, तो कुछ होना ही नहीं है। कैपेबिलिटी नहीं है, इंटेंट एंड एफर्ट है, तो कुछ तो हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही। So that brings me back to अगर आप समय की सुई को पीछे कर सके अभी, एंड सोचिए आप कर सकते हो, what advice would you give yourself? मतलब अभी के जो रामानुज हैं वो तभी के रामानुज को क्या एडवाइस देंगे? आप आपकी जर्नी को कैसे बदलेंगे? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं बदले भी, बट अगर वो मौका मिले तो। समय की सुई 15 साल पहले गई है, पीछे गई है। तो मैं ये एडवाइस बहुत है, क्योंकि अगर पीछे जाएं तो बड़ा अबोध बालक जैसा दिखता था मैं। ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं कि उस समय हम ज़्यादा सोच पाते थे, क्योंकि बड़े यूनि डायरेक्शनल होते थे और परिस्थिति ऐसी होती थी कि आप बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल हो भी नहीं सकते थे। तो अगर मुझे एडवाइस देना होता अगर उस रामानुज को, तो मैं बोलता उसको लिटरेचर थोड़ा और पढ़ना था। जो उसने केवल साइंस और मैथ्स पढ़ा, उसकी कमी आज भी हैबिट्स में दिखती है। जैसे बुक रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच वी हैव बीन टेलिंग टू ऑल द किड्स। कहीं ना कहीं वो आदत नहीं बनी, तो आज भी उससे स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब आज किताब पढ़ने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। आई थिंक वो शायद होना नहीं चाहिए था। करेक्ट। शायद मैं खुद से ही पढ़ने की आदत हो जाए। आई थिंक स्टिल वो एडवाइस उस समय दे दिया होता तो शायद आसान होता आज मेरे लिए, बट ये एडवाइस ज़रूर मैं देता। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल अगर आप देखो तो रीडिंग तो कम हो ही गई है जी, एंड रीडिंग होती है तो डिजिटल होती है। सो लॉट ऑफ your body parts are not activated because you're not doing book reading. Right, तो मैं सीधे बोलती हूँ, जो भी आदत डालो डल जाती है। जैसे दांत मांजने की आदत, हाँ, yes, we never forget. हाँ, and nobody question also. No one questions. हाँ, कि मैं इतना एफोर्ड करता हूँ इसके लिए। हाँ, एंड जरूरी भी है क्या? क्योंकि वो बचपन से बताया गया है। राइट, है? That's a nice one. Okay.
तो अभी थोड़ा 2010 में आप टेक वर्ल्ड से एजुकेशन वर्ल्ड आए, ओके। अभी तो आपको पता है बहुत AI, ML, चैटबॉट, अलेक्सा तो थी ही, अभी चैट GPT, परप्लेक्सिटी, फिर वो DeepSeek. ग्रॉक, डीप सीक, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। Right. बट विदाउट क्लटरिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज विच इज़ हैपनिंग। जो आपने ही कही अभी बात कि बच्चों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, पर उसका क्या करना है, फॉरगेट क्या सही है गलत है, क्या करना है उसके साथ, वहाँ से लेके बहुत चीज़ों में दिक्कत हो रही है। पर आपने टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट किया है इन नेविगेटिंग द चेंजेस दैट यू आर ट्राइंग टू नेविगेट? सो अगर साइंस का मूल आधार देखें तो इट इज़ टू हेल्प द ह्यूमैनिटीज़। सो टेक्नोलॉजी उसी साइंस का ही एक एस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ क्रिएट की गई है तो इट इज़ टू हेल्प पीपल। राइट। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब उसको एक्सेसेस में हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक हमने इनिशियल डेज में कभी कंप्यूटर्स देखे नहीं तो हमने वो कंप्यूटर भी सीखा। तो सारी टेक्नोलॉजी मैं तो उस जनरेशन को देखता हूँ कि जैसे हम पढ़ते गए और अचानक से नई चीज़ें आने लगी हमारे सामने, तो स्मार्टफोन एंड ऑल। सो लर्निंग दोज टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग देम, जैसे एजुकेशन एज अ सेक्टर अगर देखा जाए तो रीचिंग आउट टू द किड्स without feeling so complexed or inhibited, because kids are also busy with a lot of things, right? Then technology comes to your help. Very nice. Sometimes we create a doubt session on Zoom. We say if you're at home, why not do it at your home itself? Flexibility. Yes, it helped teachers to also connect. Right. It also helped me to bring all of my network at my disposal. Wow. Somebody is there in Bangalore, he is expert of share market. I wanted to have a session with my cat kid. मैंने कहा मैं क्यों शेयर मार्केट पढ़ाऊँ? Correct. मैं उनसे पढ़ाऊँ जो इसी का काम करते हैं. So I invited and it was a like great session. Now we do very often. AI/ML को लेके एक सेशन कराया तो it was again online. So it is also helping ourselves as educator कि आप सर्विसेज का लेवल भी बढ़ा पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। हाँ, जो आप केवल एक यूनिडायरेक्शनल आप पढ़ाने की सोच रहे थे, शायद उसको आप और मल्टी डायमेंशनल करके सिखाएं। बहुत तो उनका एक मिनी MBA हम शायद अपने सेंटर्स पे ही करा देते हैं। बहुत बढ़िया। सो फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, तो आपने टेक्नोलॉजी को दोस्त बना के बहुत सिंपल सी चीज़ें कर दी हैं। जी मैम। ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं होती, चैलेंजेस सबके ज़िंदगी में आते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में वो क्या चैलेंजेस थे जो आप शेयर कर सकते हैं, एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? ओके, सो मेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस थोड़े कम आए। चैलेंजेस का हमेशा हम एक मापदंड रखते हैं, एक सिचुएशन का मेरी सोच से किसी और डायरेक्शन में जाना, या आपने वो परिस्थिति कभी देखी ना हो। तो डिफिकल्टी कभी इतनी नहीं दिखी जो मैंने कभी देखी ना हो। तो बहुत सारी डिफिकल्टी मुझे छोटी लगती है। जो किसी को बहुत बड़ा चैलेंज लगता हो, मुझे वो नहीं दिखती क्योंकि वो मैंने पहले देख रखा है। मैं ये बताने वाली थी, इट्स ऑलवेज द डेल्टा। आप जो सोचते हो, क्या एक्सपीरियंस किया है, टू अभी क्या हो रहा है। यस। एंड आपके जिंदगी में बहुत लोग बोलते हैं कि ये जॉय जो दिखता रहता तेरी बातचीत में, ये कहाँ से आता है। मैंने कहा वो डेल्टा जो है ना, वो काफ़ी है। इट टेल्स यू हैव डन समथिंग। तो चैलेंजेस रहे, क्योंकि जब आप कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, बिकॉज करियर लॉन्चर में जब आप स्टेप इन किए, सो इट इज़ वन वे टू क्रिएटिंग योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का जो एक
काम था and we were new to this. Right. And all of us were having experience of 3 to 4 years. And more or less सब लोग का एक ही तरह के फैमिली बैकग्राउंड से थे. So it was not like I can ask my father to invest X money to my business. Right. अगर मैंने 1 रुपया भी मांग लिया होता, he would have felt कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ. क्यों कर रहा है ये? हाँ, क्यों कर रहा है? अगर तुम्हें जरूरत पड़ गई मुझसे ही पैसे लेने की तो. So I think we did each and everything by having initial days lifestyle at a very low cost. I remember I and my younger brother, we stayed in 2010 to 11, almost 1.5 years, in a one-room set. Wow. And because we wanted to have a low cost at our place, we should not need money from the system. And I think that was the foundation. Right. Had I been taking a lot of money from my system, I think creating another center would have been difficult for us. तो वो एक रहता है मुझे कि वो एक चैलेंजेस जो हमने जो देखे, आई थिंक हमने उसको मिटिगेट भी किया. बाकी कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो आते हैं. सो रूल बहुत सिंपल है, प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बहुत एक सिंपल लाइन रखता हूँ मैं, किसी को भी बोलता हूँ, वो मैथ्स के सवाल में भी, सर ये सॉल्व हो ही नहीं सकता मुझसे. हमने कहा फिर प्रॉब्लम ही नहीं है तेरे लिए वो. इफ इट कैन नॉट बी सॉल्व दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अ प्रॉब्लम इफ इट इज, इफ आई कैन सॉल्व इट, उसको सॉल्व कर लेंगे. जो सॉल्व नहीं हो सकता वो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है. ये तो आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकती एज अ स्टूडेंट टुडे, वो गलत प्रॉब्लम है. तो वो एक रहता है. तो बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आते हैं जो शायद वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. सो वी टेक एज इट इज. श्योर. और वो जर्नी चल रही है, मतलब बहुत बार इसको पार्ट ऑफ लाइफ मान के चले, इसलिए शायद चैलेंजेस थोड़े से कम देखते हैं, मतलब कम एहसास हुए. राइट. आपने सही करेक्ट किया मुझे कि जितना डेल्टा आप कम सोच लेते हो, यू कैन गो थ्रू इट बेटर. राइट. बिकॉज यू फील इट कैन बी हैंडल्ड. राइट. वेरी नाइस. तो थोड़ा स्टूडेंट कॉर्नर की तरफ जाते हैं. एंड दिस इज योर मैसेज टू द स्टूडेंट्स. If you consider parents your students, it's very good. What is the hardest truth about success? What your students, in your experience, they don't want to hear, but they need to. जब बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक चीज़ जो आई थिंक ओवर द टाइम, उस टाइम ड्यूरेशन में हमें अचीव करनी होती है, टेलिंग देम दे शुड एनालाइज देमसेल्फ. Because the wrong messaging or wrong target set by them is actually creating problem in their life. Sure. तो वो जो बात है कि reality check, जो assessment है, और उस बात को वो समझ ले, तो I think he or she will do good. तो hardest thing यही होता है उसको ये बताने में कि ये जो एग्जामिनेशन तू कैटर कर रहा है, ये किस स्टेज तक तुम्हें लेके जाएगा और तुम अपनी जर्नी फिर नेक्स्ट फॉरवर्ड कैसे करोगे. श्योर. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू सक्सीड टुडे इटसेल्फ, इट मे टेक टाइम. राइट. वो टाइम के लिए हो सकता है मैं कॉलेज में जाके वो टाइम लूँ. करेक्ट. ऐसे भी एग्जाम्पल हैं. लोग बोलते हैं विच परसेंटाइल इज अ गुड परसेंटाइल. मैं बोलता हूँ एवरी परसेंटाइल इज अ गुड परसेंटाइल. बीट 70 परसेंटाइल इन कैट, बीट 99. इट डिपेंड अपॉन हु इज गेटिंग इट. I know kids who get 70 percentile and हमने उसको पार्टी दी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो 70 percentile ला दिया, वो ही कैन गो इन एक्स कॉलेज एंड आज वो वंडर्स कर रहा है. वो राइट. मतलब हिज सक्सेस इज लाइक comparable to even somebody started from IIM Ahmedabad. Beautiful. From same batch. Right. And he started from a very humble college. वो बच्चों का जो एस्पेक्ट है, उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि करियर इज नॉट ओनली अबाउट द डिग्री, इट इज अबाउट व्हाट दे डू इन द कॉर्पोरेट. करेक्ट. उसके लिए वो अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हैं. तो आई थिंक उस बात से निकालना कि केवल परसेंटाइल ही उनका सक्सेस तय करेगा, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाना, आई थिंक ये चैलेंज सारे टीचर्स पे रहता है. अगर हमने ये अच्छे से कर दिया, आई थिंक
रिजल्ट्स आने के बाद जितना आप सौरव देखते हैं बच्चों में, मैं बोलता हूँ एक्सेप्टिंग द रिजल्ट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ मैनेजमेंट. एक्सीलेंट. गुड और बैड, कैन यू एक्सेप्ट इट. जब एक्सेप्ट कर लिया तो रोने का समय कब है मेरे पास, और जर्नी शुरू हो गई. जर्नी शुरू हो गई. मैंने एक्सेप्ट करते ही मेरा नेक्स्ट स्टेज शुरू अगला पड़ाव शुरू हो गया. और जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनमें लोग महीने बिताते हैं. कुछ कुछ बच्चों के साथ हमें 3 महीने लग जाते हैं कि 3 महीने बाद वो फिर से आता है हमारे पास कि सर अब बताएं क्या करें. हमने 3 महीने तक क्या करा था, सर मैं आपको फेस नहीं करना चाहता था इसेंशियली. तो वो कहीं ना कहीं एज ए टीचर हम अगर बता सकें और बच्चों को इस बात को समझा सकें कि रिजल्ट जैसा भी हो एक्सेप्ट करो, व्हाट नेक्स्ट की बात करें, आई थिंक दैट इज द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड. ब्यूटिफुल. आई थिंक ये जो दूसरी बात कही, ये बहुत कम लोग इतनी सरलता से कह पाते हैं. राइट. वो रोग क्या है पता चल गया तो ही तो मेडिसिन देंगे आप उसको वेरी क्लीनली. एंड गोल सेटिंग आई थिंक इज अनदर वेरी ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. नहीं तो कश्मीर जाना है, कन्याकुमारी का गोल सेट कर लिया, जितने भी जल्दी पहुंचे गोल के से और दूर जा रहे हो. नहीं और पता चला कि जैकेट पहन के कन्याकुमारी पहुंच गए. तो दैट आल्सो प्रिपरेशन कुड बी आल्सो डिफरेंट. राइट. तो इतने ज़्यादा बच्चों से आप संपर्क में रहे हैं, एंड अभी भी आई एम श्योर वो 15 साल पहले जो बच्चा था वो भी संपर्क में है, जैसे आप आपके सर के संपर्क में हैं, है ना. तो एक बात, जो वाइल्डेस्ट एक्सक्यूज़ किसी स्टूडेंट ने आपको दिया हो, आपने कोई असाइनमेंट दी हो या कुछ डेडलाइन दी हो, व्हाट इज़ द मोस्ट द वाइल्डेस्ट और outrageous excuse a person or a student has given you? नहीं एक्सक्यूज अब इतना वाइल्डेस्ट रहा नहीं मैम. एक्सक्यूज की इतना फ्रीक्वेंट है. वो फहरिस्त बहुत लंबी है. वो लंबी है. तो अब उसमें होता ना कि जब गैप क्रिएट हो, समझ में अरे ये तो सरप्राइज हो गए हम. हाँ. ये सुन के आई थिंक वो स्टेज बाय स्टेज बच्चे दे रहे होते हैं. मैं नहीं सोच पा रहा हूँ इस पे, क्योंकि नॉर्मली बच्चा अपने एक्सक्यूज अपने बहुत आसपास ही रखता है. और उनके एक्सक्यूज को हम ज़्यादा सुन नहीं पाते, तो उसको याद भी रखना पसंद नहीं करते. तो मुझे लगता है कि बच्चों से मैं एक ही बात कहता हूँ, इट इज़ यू हु डिसाइडेड टू कम एंड प्रिपेयर, ओन इट. तो ये एक्सक्यूज किसी और को देना ये तो मुझे ये बताओ कि तुमने ये तय किया तो तुमने ये क्यों नहीं किया. सो आई थिंक बहुत बेसिक एक्सक्यूज होते हैं. मुझे बहुत ऐसा कोई याद नहीं आ रहा है कि शायद सबसे वाइल्डेस्ट एक्सक्यूज हो, एक्सक्यूज ही ना हो. ये भी हो सकता है. हाँ, जैसे बर्थडे पे सरप्राइज पार्टी ना दो तो शॉक हो जाता है. ओके. सो रामानुज, एक हैक, वो एक शॉर्टकट जुगाड़ जो स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई में टू लेवल अप. मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, वो एक क्या बोलते हैं पैंतरा या वन हैक क्या होगा? इट्स ए वेरी सिंपल हैक बट डिफिकल्ट वन. मैं लोगों को बोलता हूँ एक काम करो आप, ट्रैक योर टाइम. इफ यू क्रिएट डेटा फॉर योर सेल्फ, देन यू कैन हैव इंटरप्रिटेशन फॉर दैट. एक्सीलेंट. द किड्स मिस आउट बिग टाइम because they don't know what they did in 15 day in last 15 days. समय कहाँ गया? तो लिखा ही नहीं तो आप उसकी एनालिसिस भी नहीं कर सकते. मैं उनको बोलता हूँ you just write down the date and write down how much time you have invested for that preparation. So you're preparing for CAT, write down CAT, QA, LRDI in English. उसमें just आपको fill करना है hours, detail कुछ भी नहीं. 1 hour 0 and 0 and the next day all 0 you put 0. I think it's kid, he or she will be feeling bad, feeling 0 next day. वो पढ़ाई करना ही पड़ेगा उसको. बहुत मैं बोलता हूँ एक ही प्रॉमिस करना है, ये छोड़ेंगे नहीं, ये लिखना छोड़ना नहीं है. 0 लिखने 10 दिन भी लिखना पड़े ना 0, कि मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो 0 होना चाहिए वहाँ पे. अब उसको कंपनसेट करने का काम हमारा ही है. आई ऑलवेज टेल, क्रिएट data for yourself, then only you can do interpretation. डेटा ही नहीं तो केवल ख्याली बातें हो सकती हैं, वो उसमें पुलाव भी बन सकता है. So I recommend each and every kid who is studying, please write down the time spent by you in studying.
वो चाहे 0 आवर क्यों ना हो, लिखो 0। मैं देखना चाहूँगा कि क्या तुम 5वें दिन भी तुम 0 लिख पाओगे। आई थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज यू कुड बी अ योर मेंटर फर्स्ट। आपसे बढ़िया आपका कोई मेंटर हो नहीं सकता। तो आप अपने लिए क्या डेटा क्रिएट कर रहे हैं वो है नहीं, और आप बाकी के एडवाइसेस कैसे ले पाएंगे जब अपनी एडवाइस नहीं ले पा रहे। बहुत आई थिंक सिंपल हैक है, बट कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस पेन एंड पेंसिल। वो उठा के लिख नहीं पाते। आई थिंक वो लिखना जरूरी है। भ्रम में जीने वाली बात है मैम कि मैं बस, आप पूछो 15 दिन पहले क्या किया, पढ़ाई की थी सर, एवरेज 1 घंटा पढ़ा होगा। शायद वो एवरेज 1 था या 2 था, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस खुद ही आता है। एंड जैसे आप टाइम स्पेंड ट्रैक करने लगते हैं, आपकी इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। राइट। तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर बच्चे खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो ये इसके बिना तो नहीं चल सकता, एकदम नहीं चल सकता। एंड ये एवरेजेस को लेके मेरा एक एनेक्डोट रहा है कहिए हमेशा से। तो जो भी एटलीस्ट मुझे बताता है कि ऑन एन एवरेज आई एम गुड, मैं बोलती हूँ ठीक है, फिर एक पैर गर्म पानी में डाल लो, एक पैर बर्फ में डाल लो, ऑन एन एवरेज यू विल बी इन नॉर्मल वाटर। पर वो तो हो नहीं पाएगा। सही। तो रामानुज, अभी एक रैपिड फायर राउंड पे आते हैं। And this is all about you, a little bit about the students, and all about the students, what they can gain from you. एकदम 3-line story बताइए student की which has stayed with you. There is a story of one kid who just gave a call at one center, and I was at Greater Noida, and I received a call. He said, I want to prepare for CAT. I'm saying where do you stay? He said, मैं पटना में पढ़ता हूँ। मैंने कहा ये नंबर कहाँ से आया? कह रहे मैंने गूगल में सर्च किया, ये नंबर है, मैंने डायल किया। फिर बोलता है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, बट मुझे अच्छा करना है। हमने कहा पटना में ही कर लो। कह रहे नहीं, बिकॉज आई एम इन अ काइंड ऑफ फैमिली सिनारियो, वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे वहां से निकल के, अगर मैं वहीं रहा तो शायद वो प्रॉब्लम्स देख के मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सो आई नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट, एंड आई आस्क हिम कैन ही कम टू नोएडा? कह रहे यस सर आई कैन कम। नेक्स्ट डे वो नोएडा सेंटर में, ब्यूटीफुल, एंड ही वर्कड विद अस बिकॉज ही हैज नो मनी, सो ही सेड आई विल वर्क एट द सेंटर, एंड ही प्रिपेयर्ड। लॉन्ग स्टोरी because again he faced couple of problem. He did good in next CAT, and he went to IIM Vizag. And the day he got a job, he took a train, came to Delhi to meet me, saying, "So your project is done. Wow. So now I'll do good." And he's working happily in one of the big company, and he's the one, I think he always reminds me resilience क्या होती है। मतलब चाहोगे तो मेंटर्स खोज के लाओगे तुम। बहुत बढ़िया। और कोशिश करने वाले की तो हार नहीं होती। तो वो एक स्टोरी है, ऐसे बहुत स्टोरीज हैं, बट राकेश की स्टोरी मैं नाम ले रहा हूँ, उसकी स्टोरी थोड़ी सी बहुत ही बढ़िया है एंड वेरी इंस्पायरिंग। तो एक डेली हैबिट आपकी क्या है विच हेल्प्स यू स्टे सो शार्प, एनर्जेटिक? गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। मुझे लगता है कि मॉर्निंग का समय अगर आपने अपने को दे दिया, आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। द बेसिक थिंग यही है, कुछ समय अपने लिए। सो गेट अप इन द मॉर्निंग, आई थिंक द वन ऑफ द ग्रेट हैबिट आई फील एनीबडी कैन टेक अप। Wake up early in the morning. Wake up early in the morning. And give yourself that time. Yes. Brilliant. तो थोड़ा आपका फन साइड देख लेते हैं रामानुज। जी मैम। मुझे आज भी बहुत मज़ा आया। But if not this mentor, this hat, as a full-time, thing that you do, what would you have been? थोड़ा students को surprise करते हैं। So basic guesswork will be again, I have been an engineer because वो कहीं ना कहीं लोग मुझे मेरे academics को देखते हुए, मेरी पढ़ाई को देखते हुए, so my rank in GATE was all India rank 24. Wow. And that too in third year. So somewhere लोग गेस करेंगे यही कि मैं
इंजीनियरिंग साइड में वर्क कर रहा होता, बट आई वुड हैव come to my hometown and setting up something in area of education and actually also living some time over there. ये मैं प्लान कर रहा होता तो शायद हो सकता है मैं भविष्य में ऐसा कुछ सोचूं कि मैं करूं, तो वो एक चीज़ है, हो सकता है लोग मुझे को खेती करते देखते हुए सरप्राइज हो सकते हो, बट आई थिंक ये एक पॉसिबिलिटी मुझे आज भी दिखती है। पर मैं सबको बताना चाहूँगी, आप सरप्राइज होंगे व्हेन यू वॉच रामानुज सर डांस ऑन कजरारे, और हम उसका भी लिंक इसके साथ डाल देंगे ताकि लोग आपको देखें। ही इज़ अ वेरी गुड डांसर। ओके रामानुज, और थोड़े क्विक मोमेंट्स हैं। व्हाट्स द फनीएस्ट क्लासरूम मेमोरी यू हैव? फनीएस्ट? तो क्लासरूम में मैं सीरियस रहता हूँ, मतलब मैं कॉलेज के दिनों में भी आई वॉज द वन हु यूज्ड टू वैल्यू क्लासरूम। बहुत लोग चूजी होते हैं फैकल्टी को लेके कि इसका नॉलेज बेस, उनका पढ़ाने का तरीका। आई नेवर बीन चूजी बिकॉज आई फेल्ट लाइक एनीबडी कम टू द क्लासरूम, ही कम्स विद सम प्रिपरेशन, राइट, सो आई कैन गेन सम आउट ऑफ इट। तो दोस्त मित्र बहुत ऐसा करते थे, मतलब वो प्रॉक्सी लगाना ऐसा होता था बहुत बार, हमने भी लगाई है। हाँ, खुद के लिए लगवाई है। राइट। तो ऐसा एक बार हुआ कि एक दोस्त ने प्रॉक्सी लगाने के लिए मुझे बोला कि आप कर देना ये काम, तो आई डिडंट डू इट। तो मैंने एक दोस्त को बोला कि यार देख ना, उसने मुझे बोला ये तुम्हें करना है। और मजेदार बात क्या हुई कि वो समहाउ चला आया क्लास में। तो डबल अटेंडेंस लग गई। डबल अटेंडेंस नहीं, वो दो लोग ने एक साथ यस सर का वो लिखते लिखते वो तेज से कर रहे थे। दैट वाज वन वेयर एवरीवन फेल्ट लाइक कि अच्छा ये क्या है, क्या हुआ। नाइस नाइस। आप you're a very very positive outlook person and in your challenges you said आपको कम महसूस होता है। people who know you know this about you। मैंने तो हमेशा आपको even in difficult situations वो स्माइलिंग फेस अंदर से रखते हुए देखा है रामानुज। बट आई एम श्योर यू हैड योर डार्क मोमेंट्स, सेल्फ डाउट। सो व्हाट वाज दैट डीपेस्ट सेल्फ डाउट मोमेंट कि आपको लगा अपने आप पे you were not very confident? I'm obviously leaving Praxair and coming to Career Launcher. Leap of faith. बहुत. It was like because two of my professors, like one I spoke about it. One of my professor from IIT Kharagpur, Professor Kanchan Chaudhary, he was also very sad. He said, I trained you for the technology and you know a lot of things about cryogenics and all. You're leaving. This is not right. And the 2 years, initial 2 years were also difficult because we were new and we had to face a lot of challenges. On those time, a lot of advices come from here and there, from the family side, from the friend side. अभी भी मौका है, तू वापस जा सकता है. But कहीं मुझे ये लगा था कि अगर डिसीजन ले लिया गया है, टेक डिसीजन एंड मेक इट राइट. ब्यूटीफुल. एक कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था, शादी करके प्यार करो. हाँ, मतलब कुछ नया और क्या होगा. मतलब मेरा कहना है एनी डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन, जस्ट डू इट. तो वो एक हुआ. और आई थिंक कोविड टाइम वाज द वन वेयर वी फेल्ट वी स्टक. राइट. हमें ऐसा लगा कि शायद वी हैव नॉट क्रिएटेड समथिंग which can handle this kind of scenario, but somehow togetherness, when the entire team listened me and I said, can we stay together and whatever money comes to the system, we should take salary based on that. I'm pretty open, I'm pretty transparent. Whatever money I'll be having, I'll be sharing with you. Beautiful. I think my team member agreed to even take 20% of salary in a month. And that was also, and then because our team was there, we didn't fire a single person in COVID time. In the team at 20 and team at 21 were almost same. Same. And that gave us a confidence. I think if you create people around whom you care,
आई थिंक a lot of worry will be taken care by them. Beautiful. तो मेरी बहुत सारी समस्याएं मेरी तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि मेरे कुछ ऐसे टीम मेंबर्स हैं शायद उसकी चिंता वो पहले कर लेते हैं. सो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ पर्सन हु इज़ वर्किंग विथ अ टीम स्मॉलर or bigger. Can you create people around you who can really think your problem is their problem and they can tackle? I think that way we can do it better. So जब instead of one तो वही Ramanuj दो जो टाइम है, है, मतलब initial 2 years and the COVID times. I think in between I think we have been doing fairly well. Lovely, lovely. So if students could describe you in 3 words, वो 3 शब्द क्या होंगे रामानुज के बारे में? Sincere and simple in teaching. Sincere and simple in teaching. चलो मैं तो ये दोनों अग्री कर लेती हूँ. आपको अगर स्टूडेंट्स को बताना है की क्वालिटीज या बिहेवियर टू सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एग्जाम्स कहो, एडमिशंस कहो, वो 3 चीज़ें क्या होगी? कैपेबिलिटीज या क्वालिटीज? मैं किसी के लिए बोलता हूँ, मतलब ये बात जरूर. हाँ, तो मैं बोलता हूँ कि द इंटेलेक्ट, वेल्थ एंड द पर्सनालिटी इज अ गिवन बाय गॉड. वी आर जस्ट केयर टेकर ऑफ दैट. मुझे कितना मैं इंटेलेक्चुअल कोसेंट है, क्या वेल्थ इंटरेक्ट करता हूँ फैमिली से, कैसा दिखता हूँ, आई एम जस्ट अ केयर टेकर ऑफ दीज थिंग्स. बट आई कैन work on 2 things which is in my hand. That's called my sincerity and my behavior. If in these 2 front, if somebody has taken responsibility, I think वो अच्छा कर जाएगा. Beautiful. He or she should understand sincerity उसकी अपनी responsibility है, उसका behavior उसकी responsibility है. He has to own it. She has to own it. एकदम. किसी ने अगर बोला कि I do not like this attitude, or I do not like the way you have spoken at this time, I think you should take it in more like substantive way than somebody says कि तेरा मैथ्स खराब है. Right. वो मेरे को एक्सेप्टेड है. लेकिन कोई बोलता है आपने अच्छे से मुझसे बात नहीं की, I think I should take it as a more serious way, क्योंकि ये मैं मैनेज कर सकता हूँ, ये मेरा काम है. Right. So I tell kids, being sincere, well mannered, that's 2 things you take care. Rest thing will be taken care by surroundings only. सर्कल ऑफ कंट्रोल में जो है वो कर सकते वो हैं. पूरी तरह से करना. Right. बहुत ब्यूटीफुल. और एक गलती विच स्टूडेंट शुड अवॉइड? Not dreaming big. Wow. Wow. Because they always feel कोई बड़ा हुआ है तो वो कुछ अलग होगा, लक होगा, कुछ लक होगा. मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रीम जो करने की आदत है वो, और बच्चों में देखा है, जो बच्चे ड्रीम करते हैं ना वो इतने कैपेबल नहीं होते तो भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं. एक बात ये बड़ी जैसे कहते हैं सीक्रेट, क्या होता है 10 सीक्रेट वाला जो द सीक्रेट वो किताब जो है, हाँ, कि जो सोचते हो, जो करते हो चीज, मैनिफेस्टेशन, आई थिंक है. मतलब वो इस 15 साल में मैंने देखे कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि उनको वहां तक पहुंचना है, एंड दे रीच्ड. मतलब ये चीज दिखी है कहीं ना कहीं. तो वो ड्रीमिंग कुड बी वन थिंग. दे शुड नॉट लीव दैट. हाँ, वो गलती ना करें कि ड्रीम बड़ा कर. मैं जो MBA क्लास में बच्चे होते हैं मैं बोलता हूँ, क्या तुम सोचते हो कि तुम एक कंपनी सेटअप किया है जो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन की है, क्या तुम सोच पा रहे हो? मतलब तुम सोच ही नहीं पा रहे हो तो मतलब थोड़ा मुश्किल है. कम से कम ड्रीम में तो हो कि हाँ सर ये तो मैं ही करूँगा ना. कोई तो कर रहा है, आज कर रहा है तो कल भी कोई करेगा. कल में तो मैं ही हूँ, कल का MBA ग्रेजुएट तो मैं ही हूँ. करेक्ट. तो मैं भी तो रन कर सकता हूँ. ये बात क्लास में बड़ा अचानक से साइलेंस हो जाता है कि क्या सच में ऐसा होगा. हाँ. क्या इस क्लास में बैठे हुए लोग ऐसा कर पाएंगे. तो ये एक मोमेंट है जो बच्चों से हम थोड़ा बातचीत करते रहते हैं. पर ये सच भी है कि ज़िंदगी में जो भी सिग्निफिकेंट चीज़ें होती हैं, अच्छी या बुरी, वो हमेशा एक बार नहीं होती, वो 2 या 3 बार होती है. पहली बार तो यहाँ होती है सोच में, दूसरी बार अगर प्लान करे तो तब होती है, और तीसरी बार जब होती है तो तब होती हो है. जाती है. ये बहुत अच्छी बात कही. एंड रामानुज, आई थिंक जो आप बोल रहे थे ना, आप ज्ञान नहीं बांटते, आप लॉट ऑफ लॉजिक, रीजनिंग विथ ह्यूमिलिटी
एंड हाई EQ करते हो मेरे हिसाब से। तो जो आप दूसरों को बोल रहे हो, you've dreamt big, you've been passionate about it, and you've been relentless, dedicated, disciplined about it. So that's really, really beautiful. पर अगर मैं रामानुज के आवाज़ में सुनूं, सोच से सुनूं, what makes रामानुज unique? मैं बोलता हूँ सीरियस फॉर सेल्फ एंड सिंपल फॉर अदर। वाओ, ये मेरा लाइन है और मैं बहुत दिन से इस पे मैं जब मैं सोचता हूँ क्या मैं इसको बदलना है तो मुझे लगता है कि नहीं। और सच में अपने लिए बहुत सीरियस हूँ मैं, अपने एक्शन के लिए, अपनी बातचीत के लिए, अपने काम को लेके, मतलब उसमें कोई रियायत नहीं होता। लेकिन दूसरों के लिए मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं रखी कि वन शुड डू दिस। सो सिंपल फॉर अदर्स, सीरियस फॉर सेल्फ, ये थोड़ी सी फिलॉसफी मेरी अपनी रहती है। ये मैं चुरा लूँगी आज से। आपका विजन है, जी मैम। पर इफ आई कैन इम्प्लीमेंट इट फॉर माई सेल्फ इट विल बी यूजफुल। Right. सो थैंक यू सो मच Thank you, ma'am. रामानुज। आई थिंक आई हैव बेनिफिटेड, आई नो यू हैव, बिकॉज आप बोलते हो, खुद सीखते हो, Right. एंड आई एम श्योर मिलियंस ऑफ अदर्स have and will continue to. So thank you once again for joining us. Thank you, ma'am. Thank you for All the giving me the best. opportunity to speak with you. All Thank the you. best. Thank you.